Good morning everyone. In the previous class we have studied part 4 from chapter 3 The Little Girl. Today we will discuss part 5. Let's start. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously means with a lot of efforts or difficulties. तो laboriously means क्या होता है? Difficulty और effort. With a double cotton, the little girl stitched 3 sides. She used double cottons refers to a thread and she stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. Here, Kezia was confused. What she fill? The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scarves. Here Kezia was confused what she should use to fill the cushion with, as her granny was out in the garden. She was just looking for something and reached her mother's bedroom. तो केजिया जो है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है और वो क्या चाहती है, अपने फादर को सरप्राइज़ करना, वो अपने फादर को सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट देना चाहती है। ऐसा आइडिया उसकी ग्रैनी ने दिया था और उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया था उसे कि वो उनके लिए क्या बनाएगी, पिन कुशन बनाएगी। और उस पिन कुशन को बनाने के लिए वो क्या करती है, डबल कॉटन, डैट मीन्स यहाँ पे बताया गया है, यानी जो स्टिच करते हैं। तो वो 3 साइड्स से वो क्या करती है, कुशन को बनाने के लिए 3 साइड्स से स्टिच करती है। बट क्वेश्चन क्या आता है उसके सामने कि वो इसे फिल क्या करेगी, उसमें वो क्या स्टफ़ करेगी, क्या फिल करेगी, क्योंकि उसके पास फिल करने के लिए, उस बैग को फिल करने के लिए कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये सामने उसके एक क्वेश्चंस था। अब यहाँ पे जो ग्रैनी है, ग्रैनी कहाँ है? ग्रैनी वॉज आउट इन द गार्डन। ग्रैनी जो है वो गार्डन में है। सो unintentionally Kezia was looking some paper or clothes to stuff into her cushion. So by chance she reached into her mother's bedroom. तो यहाँ पे क्या होता है कि केजिया को क्या चाहिए होता है, कुछ भी स्टफ़ करने के लिए, कुछ पेपर्स या फिर पुराने या ओल्ड क्लोथ्स वगैरह जो भी हैं, तो वो उसे चाहिए होते हैं उस अपने पिन कुशन में स्टफ़ करने के लिए। और वो अनइंटेंशनली यानी बाई चांस जो है वो कहाँ चले जाती है, ढूंढते ढूंढते अपने मदर के बेडरूम में पहुँच जाती है। ऑन द बेड टेबल शी discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. Here Kezia was just looking for something and by chance reached her mother's bedroom. She was looking and some papers or clothes to stuff into the cushions and on the bedside, and she found the heap of papers. So when she found the paper, she tore them and made them tiny pieces of them, and she stuffed those pieces of papers into the cushions and sewed the 4th side of the cushion, and she prepared the birthday gift for her father. तो जब केजिया को क्या मिलता है, स्कार्प्स ऑफ पेपर यानी बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं उसको बेड साइड में, तो वो क्या करती है, उन शीट्स का, उन पेपर्स को क्या करती है कि उनको सारे को टोर कर देती, सारे को फाड़ देती है और एक जगह जमा करके उनका टाइनी पीसेस बना लेती, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें
फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़ा कर देती है और उसके बाद फिर वो जो उसने पिन कुशन बनाया हुआ था अपने पापा के बर्थडे गिफ्ट के लिए, वो उसमें क्या करती है, उस पिन कुशन में उसे स्टफ़ कर देती है, यानी कि उसमें वो उसे डाल देती है उस पेपर्स जो उसने छोटे छोटे टुकड़े में उसे फाड़ दिया था, उसे उस बैग में वो स्टफ़ करती है और उसका 4th साइड जो लेफ़्ट था, उसने 3 साइड से सिव्ड किया था, तो वो क्या करती है, उसे फिर सिव कर देती है। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Now, Kezia had torn some important paper. So Kezia's father was very angry, as he had prepared a speech for a particular meeting or the port authority, and he was unable to find this. Servants' questions, and finally mother came into Kezia's room. तो यहाँ पे क्या है कि उस दिन जब केजिया ने क्या किया था, केजिया had torn the important papers of her father. उसने अपने फादर के इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो थे उसे क्या किया था, उसने टॉर्न कर दिया था, उसे फाड़ दिया था और अपने पिन कुशन में स्टफ़ कर दिया था। अब उसके फादर का वो इम्पॉर्टेंट पेपर था जो उन्हें क्या पोर्ट अथॉरिटी के लिए, यानी एक मीटिंग के लिए वो पेपर थी और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर थी जो लॉस्ट हो गया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। ह्यू एंड क्राई यहाँ पे दिया हुआ है, डैट मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट, ठीक है। तो केजिया के फादर इस टाइम पे क्या थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में थे और इस वजह से वो सारे पेपर्स जो हैं जो उनके लॉस्ट हो चुके थे वो पेपर को सर्च किया जा रहा था, बट वो पेपर कहीं पे भी नहीं मिल रहा था।